بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے، جس کا نام ہے زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام۔ کل ہم نے اس کی تشریح کی تھی، آج ہم اس کی مشق دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ اور اس کا مقصد کیا دیکھتے ہیں۔ زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام، اس کا خلاصہ ہے ہماری زندگی مختلف جذبات کو ہموار کرنے میں گزرتی ہے۔ آدمی شلجم اور گاجر جیسی سبزی جیسا لگتا ہے۔ علم کتابوں میں بند پڑا ہے اور کتابیں الماری میں بند ہیں۔ تعلیمی ادارے صرف عمارتوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ طالب علموں سے پوچھو کہ ملٹن کون ہے تو وہ اسے سوتی کپڑے لٹھے کا نام بتائیں گے، اور مومن خان مومن جو کہ شاعر ہیں کوئی اپنے محلے کے پنساری کا نام بتاتے ہیں۔ اس دور میں اپنی عزت بنا کر رکھنا بہت دشوار ہے۔ شاعر صاف کالر کے نیچے اچھی سی قمیض پہنتا ہے، یعنی اچھی ملازمت کو برقرار رکھنا بھی مشکل کام ہے۔ کیس جس نے لیلا کے عشق میں نجد کے صحرا کی خاک چھانی، جس کی وجہ سے وہ زمین کی پیمائش کرنے والا افسر بن گیا۔ اگر محبت میں کھوٹ ہو تو دوست کے جانے کا دکھ پھر بھی ہوتا ہے اور عشق کی بیماری کا نام بدل جاتا ہے۔ اگر انسان کی فطرت بدل جائے تو قابل غور بات ہے، ورنہ اونٹ کو لاری کا نام دے دیا جائے تو وہ لاری نہیں بن جاتا، اونٹ ہی رہتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، وہ محبت ہو یا کھانے کی کوئی چیز، ڈگری ہو یا عہدہ، سبھی کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ آئیے آگے ہم اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے جا کر اس کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ جائے۔ اور اس کا مرکزی خیال ہے انسان کی زندگی دکھ اور خوشی کے جذبات کو ہموار کرنے میں گزرتی ہے۔ انسان بھی معمولی سبزن جیسی اوقات رکھتا ہے۔ اگر تعلیمی اداروں سے کچھ نہ سیکھا جائے تو طالب علموں کو کسی سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ زندگی میں ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، چاہے وہ محبت، غذا، عہدہ یا ڈگری ہو۔ سوال نمبر 1 ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں، آئیے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے زندگی ہے بعض اشیاء کی خریداری کا نام سے کیا مراد ہے؟ زندگی ہے بعض اشیاء کی خریداری کا نام سے مراد ہے کہ ہماری زندگی نہایت ہی مختصر اس طرح ہے کہ ہماری تمام زندگی مختلف چیزوں کو خریدنے میں گزر جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے علم الماری کا نام سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ علم الماری کا نام سے شاعر کی مراد ہے کہ ہم نے کتابوں کو الماری میں بند کر رکھا ہے، ہمارے پاس علم ہے مگر ہم اسے استعمال نہیں کرتے، الماری کو کھولنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ سوال نمبر 3 ہے الفاظ مکتب چار دیواری کا نام کیا ظاہر کرتے ہیں؟ مکتب چار دیواری کا نام یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مکتب صرف عمارت ہے مگر اس سے ہم کچھ تعلیم و تربیت حاصل نہیں کر پاتے۔ سوال نمبر 4 ہے صحرائے نجد کہاں واقع ہے؟ نجد جزیرہ نما عرب کا وسطی خطہ ہے، یہ یمامہ سے لے کر مدینہ منورہ تک کا علاقہ ہے۔ اس کا لاسٹ سوال ہے پٹواری کا کیا کام ہوتا ہے؟ پٹواری کا کام زمین کی پیمائش کر کے ان کی خرید و فروخت کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ علم الماری کا مکتب چار دیواری کا نام، ملٹن ایک لٹھا ہے، مومن خان پنساری کا نام، بات تو جب ہے بدل جائے سرشت انسان کی، صاف کالر کے تلے معقول اجلی سی قمیض، دل ہو یا دلیا ہو دنائی کے بلائی ضمیر، کیس ہے دراصل ایک مشہور پٹواری کا نام۔ سوال نمبر 3 ہے نظم کے مطابق مصرع مکمل کریں۔ پہلا ہے صاف ڈیش کے تلے معقول اجلی سی قمیض، کالر ہے بہت ہی مختصر سا میری ڈیش کا نام دشواری، کیس ہے دراصل ایک مشہور ڈیش کا نام پٹواری، بات تو جب ہے بدل جائے ڈیش انسان کی سرشت، زندگی ہے بعض اشیاء کی ڈیش کا نام خریداری۔ سوال نمبر 4 ہے نظم زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام کا مرکزی خیال تحریر کریں، جو کہ ہم سبق کے شروع میں دیکھ چکے ہیں، آپ ایک بار پھر سے جا کر بھی اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی اور متشابہ الفاظ تحریر کریں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ متشابہ الفاظ کہتے کسے ہیں، یہ ویسے بھی ہم پیچھے بہت بار اس کو پڑھ چکے ہیں، یہ ایک بار پھر سے اسے ہم دہراتے ہیں۔ متشابہ الفاظ اس کو کہتے ہیں جو املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں لیکن معنی ان کے بالکل مختلف ہوں، جیسے کہ یہاں پر الفاظ ہے اعلیٰ، اب اس کا متشابہ الفاظ ہے اعلیٰ،
अब इमला के लिहाज से ये सेम है, लेकिन अगर आप इस आला का मायने देखें, इसको कहते हैं ऊंचा, और इस आला का मायने होता है पुर्जा। आगे है अल्म कहते हैं झंडा, और दूसरा अल्म होता है गम। आम फल का नाम, आम मामूली। हामी हमायत करने वाला, हामी रजामंदी। कसरत ज्यादती, कसरत वर्जिश। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी को भी इसमें से फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुहावरा होता क्या है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने असल मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो मुहावरा कहलाता है। मसलन आसमान सर पर उठाना का मतलब है बहुत ज़्यादा शोर करना। इसी तरह आग बगोला होना का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। ये आम तौर पर हम आम हालात में भी एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से मुहावरे बोलते रहते हैं। आइए आगे इसका हम देखते हैं। तो मुहावरे देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मुहावरा होता है हमने उसको वैसे का वैसे ही लिखना होता है। जिस तरह कि ये था ना आसमान सर पर उठाना, तो हम आसमान की जगह पर ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि फलक सर पर उठाना। ये आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मायने वाज़ेह हो जाएं। ये कुछ मुहावरे हैं जिसको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आइए इन सबको देखते हैं जी। तो सबसे पहला मुहावरा है आब आब होना, जिसका हमने जुमला लिखा है चुगली करने के बाद आमिर अपनी इस हरकत पर आब आब हो गया। आगे है आग बगोला होना, जरा जरा सी बात पर आग बगोला होना अक्लमंदी नहीं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो मैंने जुमले लिखे हैं इसके अलावा आपको जो मुनासिब लगे आप वो भी लिख सकते हैं। अगला है अपना उल्लू सीधा करना। अहमद ने अफसर की तारीफ करके अपना उल्लू सीधा कर लिया। बाग बाग होना, रंग बिरंगे फूलों को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुंह की खाना, हसद करने वाले अक्सर मुंह की खाते हैं। फूले ना समाना, मुर्गी ने अंडों से चूजे निकलते देखे तो खुशी से फूले ना समाई। सवाल नंबर आखिरी देखने से पहले हम इसकी कुछ और चीज़ें हैं जो कि वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रमूज़ काफ, ये हम सबक नंबर 1 में भी इसको तफसील से पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम फिर से इससे दोहराते हैं कि रमूज़ काफ होता क्या है। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, जबकि काफ वक्फ की जमा है, और जिसका मतलब होता है ठहरना या रुकना। आगे सबसे पहले आ जाता है खत्मा। खत्मा कहते हैं जब किसी की बात ख़त्म हो जाए तो हम उसके आगे ये वाली जो अलामत है वो लगाते हैं। ये आपने अलामत बिल्कुल नहीं भूलनी। इस तरह कि आप नहायत नरम दिल है। अब यहाँ पर बात मुकम्मल हो चुकी है, इस वजह से हमने इसके आगे खत्मा का निशान लगा दिया। आगे जाता है सवालिया। सवालिया जो कि होता है जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, जिस तरह कि ये सवालिया का निशान है। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, अब इसके आगे हमने लगा दिया सवाल। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, आपका नाम क्या है, आप कब आएंगे, आप कब जाएंगे, आप कब खाएंगे, आप कब पिएंगे, ये सारे के सारे सवालिया होते हैं। आगे आ जाता है सकता। सकता की अलामत कुछ इस तरह से है, और सकता की अलामत जो हम थोड़ा सा हमने वक्फा करना हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बहुत से नाम आप देख रहे हैं, अहमद, असलम, फ़ारूक। अब इनके दरमियान और से पहले जितने भी नाम होंगे हमने इनके दरमियान ये जो सकता की अलामत है वो इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर फलों के नाम देख लें, आम, सेब, केला, अंगूर और माल्टा। अब आम, सेब, केला, अंगूर के दरमियान हमने सकता की अलामत लगानी है। आगे है नदाइया, जिसकी अलामत कुछ इस तरह से है। ये आपने अलामत बहुत अच्छे से याद करनी है, ये आपको अभी भी नहीं, आने वाले वक्त में भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। ये अलामत हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम हैरत या जज्बात का इजहार करना हो, या मुखातिब करने या हैरत वगैरह का इजहार करने के लिए लिखे गए अल्फाज के बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के या अल्लाह हम पर रहम फरमा। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि हमने इसमें हैरत का इजहार किया है, इस वजह से हम लोगों ने इसके आगे नदाइया की अलामत लगाई है। आगे आ जाता है ववैन। ववैन की कुछ अलामत इस तरह से होती है, ये हमने कोई इबारत या इक़्तिबास या किसी का कौल बयान करना हो उसके लिए हम ये वाली जो अलामत है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बच्चा बोला, अब हमें नहीं पता क्या बोला, क्यों बोला, किस वक्त बोला। अब वो बोल कर रहा है अम्मी मुझे भूख लगी है, इस वजह से अब उसने जो अपनी बात बयान की है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ववैन का इस्तेमाल किया है। लास्ट पर आ जाता है राबता, जिसका आप लोग ये साइन देख रहे हैं, कोलन है। ये कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ किसी जुमले के साबित बात या ख्याल की तशरीह या तस्दीक की ज़रूरत हो, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है जी सवाल नंबर 8, जो कि है दिए गए पैराग्राफ में मौजूद जगहों पर अलामात वक्फ लगाएं। पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर हमें मज़ीद समझ आ जाएगी कि कौन कौन सी अलामत का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये जो छोटा सा पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। वो क्या है जी? ताहिर, नासिर, फहद और जलील अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने एक दिन सैर का प्रोग्राम बनाया। फहद ने पूछा दोस्तों हम कहाँ जाएंगे? तीनों दोस्त सोच में पड़ गए। जलील ने कहा अब्बा जान ने बताया था फैसल मस्जिद जाना, वो बहुत खूबसूरत है।
सब दोस्त वहाँ जाने पर राज़ी हो गए। ये तो एक छोटा सा है पैराग्राफ। अब हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि बात कहाँ पर ख़त्म हो रही है, कहाँ पर हमने ववैन लगाना है, राब्ता लगाना है, नदाइया लगाना है, सारा कुछ आइए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले है ताहिर, नासिर, फ़हद और जलील अच्छे दोस्त हैं। अब ये जो 3 नाम है इसके दरमियान में हमने थोड़ा थोड़ा सा वक्फ करना है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सख्ता का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ताहर के आगे मैंने सख्ता का इस्तेमाल किया, आगे है नासिर, नासिर के आगे मैंने सख्ता का इस्तेमाल किया। फिर आ जाता है फ़हद, फ़हद के आगे तो पहले ही है और जलील अच्छे दोस्त हैं। जब एक जुमला कंप्लीट हो जाए तो उसके आगे हमने ये ख़त्मा का निशान लगाना है। चले आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक दिन सैर का प्रोग्राम बनाया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बात मुकम्मल हो चुकी है, बनाया तक, यहाँ तक ये भी बात कंप्लीट होगी तो हम लोगों ने ख़त्मा का निशान लगा दिया। आगे क्या है जी, फ़हद ने पूछा। अब वो पूछ रहा है जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर राब्ता लगाना है। ये है जी राब्ता की अलामत। वो क्या पूछ रहा है, दोस्तों। अब उसने कहा है दोस्त, अब उसने ये जो हैरत या जज्बात के इजहार में कहा है, इस वजह से हम लोग ने दोस्तों के आगे ये जो नदाइया की अलामत है हम इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे है हम कहाँ जाएंगे। अब उससे सवाल कर रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। जब सवाल कर रहा हो तो हम लोगों ने ये सवाली अलामत लगानी है। आगे तीनों दोस्त सोच में पड़ गए। यहाँ पर एक जुमला मुकम्मल हो गया है, पड़ गए के आगे हम लोगों ने ये ख़त्मा की अलामत लगा दी। फिर आगे है जलील ने कहा। अब हमें नहीं पता क्या कहा है, किसको कहा है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर भी राब्ता लगाना है, जो कि उसकी अलामत कुछ यूँ है, अब्बा जान। अब ये भी उसने जज्बात में कहा है या हैरत में कहा है, इसके आगे हम लोग नदाइया की अलामत लगा देंगे। अब क्या कहा है, आगे चलते हैं। ने बताया था। अब क्या बताया था, फैसल मस्जिद जाना वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, यहाँ पे बात ख़त्म होगी तो हम लोगों ने ये ख़त्मा की अलामत लगा दी। सब दोस्त वहाँ जाने पर राज़ी हो गए। चलें जी, यहाँ पर भी बात ख़त्म हो गई। अब इसके अंदर ववैन का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, जहाँ पर उन्होंने अपनी इबारत में कोई कौल या इक़्तिबास बयान किया ना, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। और वो कौल यहाँ तक था, सूरत तक, और वो स्टार्ट हो रहा है हम कहाँ जाएंगे, जहाँ से उन्होंने अपने सवालात, अपने जवाबात इस्तेमाल किए हैं। ये हम लोगों ने यहाँ से अच्छे तरीके से देख लिया है। इसी के साथ साथ आज का लेक्चर हुआ जाता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से जाकर इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।